right, that's the end of the first innings, and I must say Chennai Rhinos absolutely killed it. 164 for 3, and what a brilliant century by Vikrant. Right now I have with me two stars. We have Nikhil, who's supporting, of course, the Telugu Warriors, and we have Nikki. I'm not too sure who Nikki is actually supporting. Who are you supporting today? I'm here to support cricket, and I'm of course here to support all my fellow mates because I'm a part of Tamil and I'm a part of Telugu and I'm a part of Malayalam and Kannada. So don't make me take sides. I'm here in support of everybody and the game. Okay, that's the most diplomatic answer I've heard today. But did you guys enjoy the match? I think Chennai Rhinos have come back with vengeance, right? They lost the finale last year, and this year I think they're back with a vengeance to take Telugu Warriors down. So what do you feel about that, Nikhil? Well, first of all, I want to congratulate, the 100 was like amazing. It was a great knock to watch. And yes, Chennai is a tough team. We beat them in the finals last time, and I think they've come well prepared. But I think we've got a great batting, and I believe that all the 11 batsmen, all the 11 players can bat. And I think we're going to chase down the total very comfortably. Okay, it's not overconfidence. I've seen them in the practice matches, and I'm part of the team. And, I believe that my team is going to win the match, yeah. Okay, touche. So Telugu Warriors are all set to take down Chennai Rhinos all over again. At least that's what Nikhil has to say. But right now, we have a very interesting competition that we're going to go ahead with. It's called the Carbon Kamal Catch. We have 3 of our wonderful guests who've joined us. Okay, so basically, Nikki is going to throw the ball, and Nikhil, you're going to give your best shot. Don't hit it too hard. Don't hit it too hard. I don't think our contestants are professionals, so be a little easy on them. Go easy on them. Okay, so one by one, they're going to catch your shots. Okay, let's take. Can we? Yes, go ahead. We have him standing right there. Come on, catch it. Arey, that is not a catch. Come on. Okay, second person. I am scared too. Wow. Okay, now that's a Carbon Kamal catch. Moving on to our third contestant. I think my face was going to fly away as well. I'm just going to keep a little away from you. And catch! Yes! Excellent. Done. So, Nikki, there are 3 gentlemen there who would love to receive a Carbon smartphone from you. So, can we go ahead and give that to them? Yeah? All right, that's all from the ground. Thank you so much. खेल पाते हैं, उनके बॉलर्स को समझ पाते हैं. इस सब पर मंत्रणा, इस सब पर चर्चा इस समय होते हुए और एक संकल्प यहां दोहराते हुए चेन्नई राइनोज की टीम फील्डिंग के लिए मैदान पर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में तेलुगु वॉरियर के आरंभिक जोड़ी मैदान पर आएगी और 165 जीत का लक्ष्य उनके समक्ष और दोनों अंपायर अपने अपने स्थान पर इस समय पहुंचते हुए. तो एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प मुकाबला जिसमें आज के हीरो अब तक के विक्रांत. फिलहाल जो 2 बल्लेबाज उतर रहे हैं वो हैं एक तरफ प्रिंस और उनके साथ साथ सचिन जोशी. दोनों बहुत अच्छी एक साझेदारी है और ये अगर रंग लाए तो तेलुगु वॉरियर्स के लिए एक अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं. वहीं चेन्नई राइनोज के लिए सबसे कीमती चीज की इस जोड़ी को बहुत जल्द से जल्द तोड़ने की कोशिश की जाए. और सही मायनों में यह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की भागीदारी ये बनाने में 3 अर्धशतकीय भागीदारी बनाने में चेन्नई राइनोज की टीम सफल हुई है, उससे कहीं हट करके रेगुलर इंटरवल्स पर ये विकेट गिरते रहे, उनके विकेट लिए जाते रहे. ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी चेन्नई राइनोज के लिए. प्रिंस लंबे ऊंचे कद के आरंभिक बैट्समैन और उनके साथ सचिन जोशी इस समय एक आरंभिक जोड़ी. राकेश पिछले वर्ष जब जीते थे तब बहुत अच्छे फॉर्म में रहे थे. 67 रन बनाए थे पहले मुकाबले में, अगले मुकाबले में 77. लेकिन विक्रांत बल्ले के साथ तो हीरो थे ही. देखते हैं गेंद के साथ आज क्या कमाल दिला सकते हैं चेन्नई राइनोज के लिए. और यहां पर बॉलिंग से पारी की शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर और पूरा रूम था और गेंद को इस बार मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से निकालते हुए 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर और एक बड़ी शुरुआत करते हुए यहां पर तेलुगु वॉरियर. प्रिंस 4 के स्कोर पर और दर्शक झूमते हुए.
करारा स्ट्रोक, लेकिन काफी खराब गेंद आप कह सकते हैं, लूजनर जिसे कहा जा सकता है। पहली गेंद बहुत ज्यादा विट दे दिया था। और यहां पर चेंज ऑफ पेस, गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया, बल्ले के ऊपर से होकर निकल गई थी ये गेंद और भाग्यशाली रहे कि बल्ले का किनारा नहीं लगा। तो चेंज ऑफ पेस, अच्छा कमबैक। पहली गेंद पर बड़ा रूम दिया था, 4 रन कंसीड किए थे। यहां पर लगातार अपने आप को सही दिशा में लाते हुए मिडिल स्टंप पर यह गेंद, बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा नहीं था, दूसरे प्रयास में उठाया गया, सिंगल कंसीड किया, 5 बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस समय 165 जीत के लिए लक्ष्य। राकेश, आपको याद होगा मैं कह रहा था कि दाएं और बाएं हाथ के खिलाड़ी जब एक साथ खेलते हैं तो काफी मुश्किलें पैदा हो सकती है। इस बीच ये ट्वीट पढ़ते हैं मंसूर इस्माइल का, फैबुलस सेंचुरी बाय विक्रांत, ऑल द बेस्ट ब्रो। चेन्नई राइनोज के फैन है जरूर। पार्ले 2020 कुकीज CCL 6 देखते हुए और साथ साथ ट्वीट भी करते हुए। तो लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन बहुत बहुत जरूरी, और खासकर अगर टॉप ऑर्डर में हो तो उससे काफी फर्क पड़ता है। सचिन जोशी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। आपको याद होगा श्रीलंका की टीम में इस तरीके के कॉम्बिनेशन काफी रहे हैं और वो हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परेशानी का सबब बनते रहे हैं। तो यहाँ पर आरंभिक जोड़ी में जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए थोड़ा सा धीमी गति की गेंद थी, तो अपने पेस की वेरिएशन से वो परेशान कर रहे हैं विक्रांत। पहले बल्ले से परेशान किया था। यहां पर लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आते हुए एनीथिंग पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप और एक अतिरिक्त रन मिलते हुए 6 बिना किसी नुकसान के। जी हाँ, देखना बहुत दिलचस्प होगा कि किस रणनीति के साथ यहां पे उतरती है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। कोण बदलते हुए अब राउंड द विकेट आ रहे हैं विक्रांत। स्लिप के खाली क्षेत्र से निकाला, लेकिन पीछे फील्डर तैनात थे, रन नहीं मिला। ये 7वां मैच है इस CCL के 6ठे सत्र का। इस बार से हल्के से मोड़ा स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए, और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर 7 बिना किसी नुकसान के। और दूसरे छोर से गेंदबाजी संभालेंगे अशोक। चेन्नई राइनोज के लिए कप्तान आर्या पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हुए कि सारे फील्ड प्लेसमेंट्स बिल्कुल सही हो। याद रखिए सिर्फ पावर प्ले है, यानी सिर्फ 2 ही खिलाड़ी। अशोक पहला ओवर, ये लेग स्टंप के काफी बाहर पिच हुई थी गेंद और गेंद वाइड का इशारा। तो एक वाइड का और एक लेग बाई का, तो 2 रन के साथ 9 बिना किसी नुकसान के। बड़े हंस-प्रस से नजर आ रहे हैं इस समय जो महिला सिने कलाकार है। जी हाँ, काफी खूबसूरत क्रिकेट मैच भी देखने को मिल रहा है, साथ साथ बहुत से फैशनेबल फिल्म स्टार्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पार्ले 2020 कुकीज सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2016 में कोची में एक्शन यहां पे जारी रहता हुआ। 2 मैच आज होने हैं, उसमें से पहला चलता हुआ। अच्छी अनुशासित गेंदबाजी अशोक की। साथ साथ हमने ये भी देखा है यामाहा फैसिनो, जिसने किस तरीके से फैशन को कैटवॉक से साइडवॉक पे ला खड़ा किया है। बहुत अच्छा ब्लेंड है फैशन का, फंक्शनैलिटी का भी। ना सिर्फ एक स्कूटर है बल्कि एक फैशन मूवमेंट भी है। काफी खूबसूरत नजारा। मुझे लगता है कि आपको भी काफी मजा आएगा राकेश इसमें चढ़ते हुए, हवा से बातें करते हुए। निश्चित तौर से युवाओं के लिए एक नई, कह सकते हैं एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली। यहाँ पे एक अच्छा ओवर करते हुए डायरेक्ट हिट, लेकिन आसानी से पहुंच चुके थे प्रिंस। बहुत अच्छा ओवर चलता हुआ। शुरुआत में थोड़ी सी अनुशासन की कमी नजर आई थी, लेकिन उन 2 अतिरिक्त रनों के अलावा सिर्फ 1 ही रन बल्ले से। तो आवश्यकता यह है कि कोई बड़ी भागीदारी न बने चेन्नई राइनोज के लिए, और रेगुलर इंटरवल पर वो विकेट्स लेते रहे। ये एक की पॉइंट होगा।
काफी देरी से थ्रो आया था और कोई जोखिम जैसी स्थिति नहीं। और ये 4 रन के लिए गेंद को बहुत ही उम्दा तरीके से इस बार निकाल दिया वाइडिश मिड विकेट की तरफ से। राकेश, आप कुछ बहुत लेजेंडरी श्रीलंकन खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, खासकर खब्बू बल्लेबाज, और उसी में से एक के अंदाज में इस शॉट को खेला था। जिस तरीके से आसानी से इसे प्लेस किया था सचिन जोशी ने, देखिए उसे देख के काफी खुश होते जरूर सनत जयसूर्या जैसे खिलाड़ी, क्योंकि लगभग एक टप्पे पे गेंद सीधे सीमा रेखा के पार। बहुत अच्छा टाइमिंग और बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी। हल्के से गेंद को विकेट के पीछे मोड़ा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, और विकेट से टकरा कर गेंद गई, और जब तक के ओवर थ्रो और एक और रन जोड़ते हुए। तो जयसूर्या और कालू वितरना की जब बात होती थी तो उन्होंने नियमित ओवर के जो क्रिकेट है उसके आयाम को बदल दिया था। जी हाँ, मुझे याद आता है खासकर सिंगापुर में एक मुकाबला हुआ था, फाइनल मुकाबला, जिसमें शायद 100 रन 9.1 ओवर में बना लिए थे, और ऐसा उससे पहले देखने को कम ही मिलता था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत है, बहुत सूझबूझ के साथ खेलते हुए, कैलकुलेटेड रिस्क आप कह सकते हैं। दोनों ही खिलाड़ी के एक ही जितने रन 6, लेकिन साथ साथ जितने भी अतिरिक्त रन दिए हैं चेन्नई राइनोज ने, उससे बचना पड़ेगा। अगर अनुशासित गेंदबाजी करते रहें तो शायद इस मैच में वापसी जरूर कर सकते हैं। डॉट बॉल से तो नहीं संतोष कर पाएंगे, सिर्फ एक ही रन। ओवर की समाप्ति 17 बिना किसी नुकसान के। जोशी और प्रिंस इस समय 6 के स्कोर पर हैं। दोनों ने ही 6 गेंदों का सामना किया है। 2 ओवर की समाप्ति पर 4। नंद किशोर भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, और सुधीर बाबू, उनको हमने देखे हैं सीसीएल के इतिहास में कुछ बहुत जबरदस्त पारियां खेलते हुए। तो इसी वजह से चेन्नई राइनोज शायद यहां पे अगर ऑल आउट नहीं कर पाए तो इस मैच को जीतना उनके लिए काफी मुश्किल बन सकता है। विक्रांत का ये दूसरा ओवर है, और जोशी काफी धैर्यपूर्ण तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, काफी संतोष के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और गेंद को उन्होंने पॉइंट क्षेत्र में पुश करके 1 रन पूरा किया। सीसीएल सुपरफैन के लिए आप कॉल करिएगा 53 33 59 and 9, यानी कि 533 359 9 पर, और 1 लाख रुपए जीतिएगा। ओ, बहुत अच्छा शॉट, कमाल का शॉट। जिस तरीके से उन्होंने मारा था, ऐसा लग नहीं रहा था कि चौका मिलेगा, लेकिन याद रखिए ये पावर प्ले के ही अब ओवर्स है, यानी यहाँ पे ज्यादा बाउंड्री राइडर्स नहीं हो सकते। तो अगर आप इनफील्ड को भेज सकते हैं तो चौके के मौके आपके लिए बने रहेंगे। बहुत जरूरी है कि शुरू के 6 ओवर में आप फील्ड रिस्ट्रिक्शन का भरपूर उपयोग कर सकें और फील्डर्स के सिर के ऊपर से निकालें। लेकिन ये स्ट्रोक बहुत ही आकर्षक था कारपेट के सहारे। विक्रांत लगातार ऑफ स्टंप पर परीक्षा लेने की कोशिश करते हुए, और यहां पर बिल्कुल ठीक फील्डिंग के अनुरूप उन्होंने गेंद को फेंका और सीधी फील्डर के हाथ में। तो दोनों बल्लेबाज काफी सूझबूझ के साथ और काफी आत्मविश्वास के साथ भी खेलते हुए। अब जो स्ट्राइक पे आए हैं सचिन जोशी, उन पे नजर रखिए कि अब अपना हेलमेट भी गवा चुके हैं, यानी कितने आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि खास कोई गति किसी भी गेंदबाज में नहीं है। ओवर की समाप्ति 23 बिना किसी नुकसान के। बल्कि अभी भी 2 गेंदें बची हैं। अब हेलमेट बुलाते हुए पर अच्छी शुरुआत राकेश, निस्संदेह 23 बिना किसी नुकसान के, और एक अच्छी नींव बनाने में सफल होते हुए दोनों ही खिलाड़ी। जो लक्ष्य उनके समक्ष है उसमें कहीं ना कहीं ठहराव की जरूरत भी है, और ये ठहराव हो सकता है तो T20 में शुरू के 5 ओवर में ही हो सकता है, उसके बाद आपके पास अवसर ही नहीं होता। तेईस बिना किसी नुकसान के, और ये हल्के से पुश किया गेंद को,
बड़ी अच्छी रणनीति, फील्डर्स जब दूर हों तो उनके सामने पुश करके आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते हैं। और ये कैसे जोड़ी की पहचान है जो बहुत अच्छी सूझबूझ के साथ खेलते हैं कि ज्यादा कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हल्के से हाथों से खेला और दूसरे खिलाड़ी ने तुरंत रिस्पॉन्ड दिया। आंखों आंखों में जो इशारा हुआ उसकी कहीं ना कहीं परिणति रन के रूप में। और यहां पर पिच होने के बाद बाउंस भी था गेंद में, लेकिन उसको हल्के से खेला स्क्वायर लेग की तरफ, स्कोर पहुंचा दिया। 3 ओवर की समाप्ति पर 25 रन बिना किसी नुकसान के तेलुगु वॉरियर, 26 रन बिना किसी नुकसान के। शांतनु को मोर्चे पर लाए हैं, लंबे ऊंचे कद के शांतनु, जो कि बहुत बड़ा रनअप नहीं है उनका। आज उन्होंने 24 रन की पारी खेली थी और भरपूर साथ दिया था अपने आरंभिक बैट्समैन विक्रांत, जिन्होंने कि शतक पूरा किया और उन्होंने 24 रन का योगदान दिया और 52 रन की भागीदारी उन्होंने उनके साथ दूसरे विकेट के लिए निभाई। तो निश्चित तौर से एक बड़ी सूझबूझ समझ, और यहां बॉलिंग में किस तरीके का प्रदर्शन कर पाएंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी है दोनों बैट्समैन के ऊपर। सचिन जोशी आरंभिक बैट्समैन बाएं हाथ के, मिडिल स्टंप पर फुल टॉस गेंद और उसको मोड़ दिया इस बार मिड विकेट क्षेत्र में फुल टॉस पर, और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। खासकर लेग साइड में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन जोशी, जिस तरीके से खेल रहे हैं, कोई भी अगर लूज बॉल मिले तो उसमें कोई गलती नहीं करते हुए, और इसी वजह से चेन्नई राइनोज के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। यहां पर यही तो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हिज एनर्जी, सचिन जोशी। यहां पर शांतनु को बिल्कुल मुश्किलात में डालते हुए विकेटकीपर के पास पहुंची गेंद, लपकी भी गई, अपील भी हुई, लेकिन अंपायर सूचने की मुद्रा में। और आपको बता दें सीसीएल में ऐसे सिचुएशंस में भी रेफरल ले सकते हैं अक्सर, लेकिन यहां पे लिया नहीं था क्योंकि फील्डिंग साइड को पता था कि गेंद के आसपास गई नहीं थी, बहुत क्लोज, मेरे ख्याल से विश्वास नहीं हुआ कि वो स्टंप्स पे नहीं लगी बॉल। और यहां पर थोड़ा सा दिशा में परिवर्तन किया और उसे खेल दिया इस बार शॉर्ट आर्म पुल जिसको कह सकते हैं, और स्क्वायर लेग की तरफ से 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के पास। तो एक बेहतर ओवर आता हुआ यहां पर तेलुगु वॉरियर के लिए, 2 चौके इसमें। राकेश, सौरव गांगुली के बारे में कहा गया था कि वो गॉड ऑन द ऑफ साइड है, यहाँ पे सचिन जोशी वैसी ही मुद्रा धारण करते हुए लेग साइड पे अगर आप कोई भी चूक करेंगे तो उस पे पूरे रन बटोरने की क्षमता रखता है ये खिलाड़ी। बड़े मजबूत खिलाड़ी हैं लेग साइड पर, बेहतरीन कलाइयों का उपयोग, गेंद को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। तो ये सब टेक्निक जो होनी चाहिए एक लेग साइड के प्लेयर के लिए उनके पास। पारी का चौथा ओवर इस समय चल रहा है और लगातार फिर ये लेग स्टंप पर वही भूल, वही गलती, और एक बार फिर से चौका निकलते हुए बैक टू बैक बाउंड्री आते हुए यहां पर। इस बॉल से पहले शांतनु ने अपना कोण बदला था, लेकिन लाइन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी लेग स्टंप पे ही बॉल डालने में कामयाब हुए, और इस बार फिर से कोई गलती नहीं, इसके बावजूद कि फाइन लेग सर्कल के अंदर आ गया था, यानी उनसे ये फील्डिंग होनी चाहिए थी, अगर रोक लेते तो चौका जरूर नहीं होता। चौकों में बात कर रहे हैं, समय चौके में डील कर रहे हैं सचिन जोशी। इस ओवर में अब तक 3 चौके लगा चुके हैं और काफी प्रशंसनीय तरीके से, काफी आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं। और ये फिर से लेग स्टंप पर लगातार उसी गलती को दोहराते हुए, वाइड का इशारा आते हुए, एक अतिरिक्त रन और मिलते हुए यहां पर तेलुगु वॉरियर्स के लिए। बहुत अच्छा ओवर उनके लिए जाता हुआ, 13 रन आ चुके हैं, 2 गेंद अभी भी शेष हैं, और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं शांतनु, ऐसा लग रहा है कि और भी रन दे सकते हैं अगर सचिन जोशी स्ट्राइक पे रहें। इनका विकेट अब बहुत कीमती बन गया है चेन्नई राइनोज के लिए।
और यहाँ पर स्ट्राइक बदलते हुए, लेग बाई का इशारा आते हुए, तो कहीं ना कहीं लेग स्टंप के बाहर लगातार अपनी गेंदों की दिशा रखने की खामियाजा को भुगतना पड़ा यहाँ पर। चालीस रन बिना किसी नुकसान के। विक्रांत ने जो भूमिका निभाई थी लगभग उसी अंदाज में यहां पर सचिन जोशी। फर्क यह है कि वो दाएं हाथ के बैट्समैन थे और ये बाएं हाथ के बैट्समैन है। सीसीएल सुपर फैन बनने के लिए आप 5333 599 पर फोन करके 1 लाख रुपए जीत सकते हैं। और यहां पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद थी, अपने आप को काफी पीछे तक लेकर आए, पोजीशन किया, गेंद को खेला इस बार कवर्स में। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 40 बिना किसी नुकसान के। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं देवान सेन, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनोज दत्त। और मनोज काफी जिस सामंजस्य के साथ खेलती हुई। एक लंबा सफर तय करना है अगर इस मैच को जीतना है तेलुगु वॉरियर्स को, और उस सफर को तय करने के लिए एक मजबूत नींव की आवश्यकता, और काफी हद तक उसमें सफलता हासिल की है इन दोनों ही बल्लेबाजों ने। क्षेत्र में मौजूद हैं और निश्चित रूप से आप भी हमारे इस प्रसारण के माध्यम से इस खूबसूरती का आनंद उठा रहे होंगे। कोची का नेहरू स्टेडियम अब धीरे धीरे दर्शक दीर्घाओं में लगातार दर्शकों की उपस्थिति दर्ज हो रही है। एक और खूबसूरत चेहरा टॉलीवुड और बॉलीवुड मिलकर के एक नया इतिहास बनाने की कोशिश में। फिलहाल यहां पर पहला झटका लगा तेलुगु वॉरियर्स को। प्रिंस जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, संभल करके शुरुआत देने की कोशिश में उन्होंने एक शॉट खेला जिस वजह से उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा। काफी देर तक बॉल हवा में रही, हल्की सी फ्लाइट थी, खेलते समय बैट उनके हाथ में मुड़ गया, ठीक से ग्रिप नहीं कर पाए थे बैट को, जिस वजह से उतनी ताकत नहीं लगा पाए। स्ट्रोक के पीछे की बॉल मिड ऑफ क्षेत्र के ऊपर से निकल पाती। निराशा के क्षण पहला विकेट गिरा तेलुगु वॉरियर्स का। अच्छा विकेट और बहुत अच्छे वक्त पे विकेट मिला है। शाम का कैच अशोक के गेंद पे, प्रिंस हुए आउट 13 रन पे। 41 पे 1 तेलुगु वॉरियर्स। नए बल्लेबाज आए हैं बाबू, जो कि अच्छी खासी फॉर्म में है सीसीएल वर्ष 2016 संस्करण 6 में। तेलुगु वॉरियर्स का मध्यक्रम काफी हद तक बाबू के कंधों पर निर्भर करता है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी आज सुधीर बाबू के ऊपर। विकेट के दोनों ओर स्ट्रोक्स लगाना जानते हैं बाबू। देखना ये होगा कि दबाव के इन क्षणों में किस तरीके से और क्या रणनीति अपनाते हैं। ये शायद अगर कैच भी होता तो शायद नो बॉल दिया जाता। दोनों अंपायर्स एक दूसरे को देखते हुए कि क्या ये फुल टॉस अबव वेस्ट हाइट था, दिया नहीं है लेकिन चौका तो मिला ही है। बड़े आसानी से इसे चौके के लिए भेजा और अपने स्कोरिंग की शुरुआत की काफी अच्छे अंदाज में, चिरपरिचित अंदाज में सुधीर बाबू ने। ऐसे ही कमाल की बल्लेबाजी करना जानते हैं वो, और उसी का इल्म यहां पे उन्होंने फिर से दिखा दिया। देख के नो बॉल जरूर लगाइए। फुल टॉस तो था, अबव वेस्ट हाइट भी लगा। बहुत बहुत करीबी मामला मनोज। बहुत बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ, लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 जोरदार स्ट्रोक के माध्यम से सुधीर ने अपने इरादे और अपनी फॉर्म को दर्शा दिया है कि बहुत ही सकारात्मक अंदाज में वो बल्लेबाजी करने वाले हैं आज के इस मैच में। फिलहाल चेन्नई राइनोज यही कहेंगे कि इससे तो प्रिंस ही अच्छे थे, क्योंकि प्रिंस कम से कम हर बॉल पे चौका नहीं जड़ रहे थे। 2 लगातार अच्छे शॉट, लेकिन कहना भी पड़ेगा अशोक की गेंदबाजी में भी
थोड़ा सा यहाँ पे ढीलापन, बहुत ज्यादा फ्लाइट दे रहे हैं शायद गेंद को, उतनी पैनीपन नहीं है उसकी उनकी गेंदबाजी में। बहुत ही बढ़िया शॉट, लगातार चौकों की झड़ी लगा दी है सुधीर बाबू ने। पारी के 5 ओवर्स हो चुके हैं और से भी ज्यादा, और पिछले ओवर में सुधीर बाबू ने खासकर बहुत अच्छा मनोरंजन किया। नेहरू स्टेडियम कोची में जितने भी फैंस आए हैं उनका हैट्रिक्स अक्सर और संदर्भ में दिखते हैं, लेकिन इस बार हमें हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज देखने को मिला था। मनोज, चेन्नई की टीम को मद्रास रबर फैक्ट्री के बल्ले से लगातार ढूंढ रहे हैं सुधीर बाबू। एमआरएफ का स्ट्रीकर उनके बैट पर लगा हुआ है। फिलहाल देखिए किस तरीके से उन्होंने जोरदार स्ट्रोक्स लगाए थे पिछले ओवर्स में। बहुत ही खूबसूरती के साथ 3 ऐसे अवसर थे जबकि उन्होंने बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर डिस्पैच किया। जोशी की बिल्कुल सही रणनीति, अंतिम समय में गैप में बॉल को प्लेस किया और अवसर दिया सुधीर को एक बार फिर से जोरदार स्ट्रोक लगाने का। जी हाँ, गेंदबाजी में भी परिवर्तन, पावर प्ले का आखिरी ओवर करने आए हैं विष्णु, और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से सुधीर बाबू उनके सामने आते हैं, क्योंकि 12 पे खेल रहे हैं, सिर्फ 4 गेंदों पे। पहले बॉल पे रन नहीं बना पाए थे, लेकिन उसके बाद 3 लगातार चौके जड़ चुके हैं। ऑपरेशन रिस्टोर 100, जो कि जितने भी एसिड अटैक्स के विक्टिम्स हैं उनकी पूरी जिंदगी को संवारने की कोशिश करती है। ये एक समर्थन है सीसीएल के सहारे, और साथ साथ बिग ब्रदर फाउंडेशन जो कि हर रन के लिए 1000 रुपए डोनेट कर रही है। यहां पे वो 1000 रुपए नहीं मिले, लेकिन सुधीर बाबू जिस तरीके से खेल रहे हैं उससे 12,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, मनोरंजन के साथ साथ चैरिटी भी सीसीएल का उद्देश्य है और काफी हद तक उसमें एक संदेश देने में सफल रही है सीसीएल। टॉलीवुड बॉलीवुड के ये खिलाड़ी, भोजपुरी दबंग्स, पंजाब और मुंबई हीरोज, देश के विभिन्न क्षेत्रों से फिल्म उद्योग के सभी अभिनेता इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आप बंगाल टाइगर्स को भूल गए, लेकिन मैं बुरा नहीं मानूंगा। बंगाल को कभी नहीं भूल सकते। दादा सौरव गांगुली एक ग्रेट प्लेयर। सुधीर बाबू लगभग वैसे ही तेवर यहां पे दिखाते हुए फिर से एक आक्रामक स्ट्रोक, सिर्फ एक ही रन मिला, लेकिन वो एक ही मादा लेके आए हैं मैदान पे कि जल्द से जल्द इस मैच में दबाव पूरी तरह से चेन्नई राइनोज के ऊपर परिवर्तित कर दिया जाए। आपके पास मौका है 1 लाख रुपए जीतने का। सीसीएल सुपर फैन, आप टेलीफोन कर सकते हैं और जीत सकते हैं 1 लाख रुपया। आज ही देर मत कीजिए, बहुत सारे फैन हैं, हमें जरूरत है सुपर फैन की। बेहद नजदीकी मामला, जोशी ने शॉट खेला और खेलते ही दौड़ पड़े। सही रिस्पॉन्ड नहीं मिला, शायद उन्हें लगा कि बॉल फील्डर की पहुंच से दूर है, लेकिन अंतिम समय में जब बाबू ने उन्हें मना किया तो उन्हें अपने बड़े कदम वापस खींचने पड़े और यहां पर निर्णय जोशी के पक्ष में जरूर आया, अन्यथा मुश्किलों में पड़ सकते थे अगर एक और कदम बढ़ाया होता। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित हैं, तो थर्ड अंपायर को अगर रेफर किया भी है तो नॉट आउट ही मिलेगा, यानी पावर प्ले की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन उससे पहले औपचारिक डिसीजन देख लेंगे। जैसे ही निर्णय आएगा दिव्यान, राहत की सांस लेंगे जोशी, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से काफी नजदीकी मामला, और जैसे कि कहा जाता है लाइन गोज टू द अंपायर, लेकिन जिस समय विकेट पुट डाउन होंगे उस टाइम पर बैट की स्थिति देखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर जोशी ने बैट को ड्रैग जरूर किया, लेकिन अंतिम समय में बैट उनका ड्रैग होने के बाद थोड़ा सा हवा में चला गया। जिस समय विकेट पुट डाउन हुए उस समय बैट की स्थिति क्या थी वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा तीसरे अंपायर के लिए। किस्मत का खेल होता है कभी कभी, ना सिर्फ जिंदगी बल्कि क्रिकेट भी, और यहाँ पे एक किस्मत का क्या सहारा मिलेगा चेन्नई राइनोज को,
क्योंकि जब बैट स्लाइड इन किया था, जैसा कि मनोज ने कहा, थोड़ा सा उसमें उछाल देखने को मिला था। और अगर स्थिति स्पष्ट नहीं है तो उस के बारे में विचार करते हुए अंपायर बल्लेबाज के पक्ष में निर्णय दे सकते हैं। और बिल्कुल सही किया, बेनिफिट ऑफ डाउट ऑलवेज गोज टू द बैट्समैन। संदेह की स्थिति में निश्चित रूप से निर्णय बल्लेबाज के पक्ष में जाता है। फिलहाल लगातार दर्शक, दीर्घाओं में स्थानीय दर्शक आ रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं आज के इस मैच का। पारी के 6 ओवर्स के पश्चात 55 रन 1 विकेट के नुकसान पर